ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਵਲ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਡੀਓ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਵਲ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਿਸ਼ਤ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੀੜ ਉੱਠੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾ ਪਏ। ਫਟਾਫਟ ਆਨੰਦੀ ਉੱਠ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਟਾਫਟ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਲਦੀ ਉੱਠ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਰਸ਼ ਤੇ ਦੀਪਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਨਾ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੀਪਤੀ ਪੈਰ ਮਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਅਰਸ਼ ਨੇ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਰਸ਼, ਦੀਪਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਹਾਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ECG ਕੀਤੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਦਾਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ। ठीक है। ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ फ़ोन मिला देता। हेलो मामा, मेरे दादू को क्या हुआ? बेटे, थोड़ी दर्द है चेस्ट में। अभी अभी कहाँ हैं? मेरी बात करवाएं। वो बात नहीं कर सकते, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। मुझे दादू के पास जाना है, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं मामा, मैं रुक नहीं सकता, प्लीज़ मुझे ले जाओ मामा। ठीक है, मैं नानू को भेजती हूँ, उनके साथ आ जाना। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਦਾਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਸੇਵਡ ਹਿਮ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੀਪਤੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਕਲ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਬੇਟੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਵਕਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੀਪਤੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। सबसे पहले मैं दादू को मिलूंगा, अमन बोलिया। ठीक है, पापा के साथ चले जाओ, दीप्ति बोली। पापा दी उंगल फड़ के अमन बोलिया, चलो पापा, जल्दी चलो, मुझे सबसे पहले दादू से मिलना है। अर्श अमन नूं लैके अंदर गया
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਚੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਏ। ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਾਦੂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕੋ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, सरदार जी ने हौली से ही किया। नानू कह रहे थे अगर अस्पताल आप वक्त पर नहीं आते तो आप मर जाते। हाँ शायद। आप मुझसे दूर चले जाते। हाँ मेरे बच्चे। नहीं दादू, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ जिंदगी बिताऊंगा, किसके लिए जीऊंगा? मुझे साथ ले जाना, मैं भी आपके साथ मर जाऊंगा। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ अथरू बह निकले। ऐसा नहीं कहते, आप मेरे शेर बच्चे हो, बलवान हो, हिम्मत वाले हो, ऐसे नहीं कभी कहना। आप भी तो मेरे दादू हो, स्ट्रॉन्ग हो। अर्श ने भी डैडी ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। चलो अमन, घर चलते हैं। दीप्ति ने किया। मैं यहीं अपने दादू के पास रहूँगा, घर नहीं जाऊँगा। आपके पापा यहीं रहेंगे, मैं घर से जल्दी लौटूंगी। मैंने कह दिया ना मामा, मुझे नहीं जाना है, मैं दादू की देखभाल करूँगा। चलो बेटे, मेरे साथ फिर आ जाना। नहीं, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं दादू के साथ रहूँगा, इनके पास ही बैठूँगा। आज पहली बार बिना बताए मुझे छोड़कर जाने लगे थे। मैं इन्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, देखता हूँ कैसे जाएंगे। आप जाओ, मेरे लिए नाश्ता ले आना। 2 दिन अमन दादू कोल ही रहा, बिल्कुल नाल चिंबड़ के, जिवें एक बारी भरोसा ही खत्म हो गया होवे। 2 दिन तो बाद सरदार जी घर आ गए, बिल्कुल बुझे हुए, चिंता विच रुझे हुए। कोई परेशानी उन्हां दे अंदर चल रही सी। मन टिकाणे नहीं सी। इवें जाप रिहा सी जिवें उन्हां दी कोई अमुੱਲ वस्तु गवाच गई सी। इन्हां दिनां विच आनंदी भी उन्हां कोल हस्पताल रही। बार बार पुछदी रही, सरदार जी दसदे क्यों नहीं, की होया सी? मैनूं आप नहीं पता आनंदी की होया सी। चलो जो होना सी हो गया। वाहिगुरू का लख लख शुक्रिया कि तुहाडी जान बच गई, नहीं तो मैं किसे जोगी नहीं सी रहना। ये सच्चे पातशाह तेरा कोट कोट धन्नवाद है। हस्पताल तो घर आया 2 दिन ही हुए सन कि सवेरे किसी अनजान नंबर तो सरदार जी नूं फोन आया। अर्श ने चुक्या। दूसरे पासियों कोई औरत बोल रही सी, कि सरदार गुरसेवक सिंह जी का नंबर है? जी हाँ। आप गुरसेवक सिंह जी बोल रहे हो? नहीं, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, उन्हीं से बात करनी है।
अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बात नहीं कर सकते। आप बताइए क्या नाम है? देखिए, मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, वो बात नहीं कर सकते। जो कहना है मुझसे कह सकती हैं आप इंदु मैडम को जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। उनका 4 दिन पहले देहांत हो गया है, यही उन्हें बताना है। वो बहुत कागज पत्र छोड़ गई हैं, वो सब सरदार जी को पहुंचाना है। ठीक है, मैं आपसे 1 घंटे बाद इसी नंबर पर बात करूंगा। ते फोन बंद कर दिता। अर्शप्रीत बहुत बेचैन हो गया। कौन है ये इंदु मैडम? डैडी जी नाल की संबंध है? ਇਹ ਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੇਟੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। अर्शप्रीत ने उसे नंबर पर फ़ोन किया तो पूछा, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं संतोष आप्टे हूँ, इंदु मैडम के साथ पिछले 30 वर्षों से उनके साथ हूँ। उनकी डेथ कैसे हुई है? दिल का दौरा पड़ा 4 दिन पहले, सुबह 6 बजे का समय था। वहाँ क्या करती थी? बाबूजी, वो बड़ी डॉक्टर थी। आप अमृतसर आ सकती हैं? हाँ जी, मैं आ सकती हूँ। आने के लिए खर्चा है आपके पास? हाँ जी, सब कुछ है। यहाँ से सीधे हवाई सर्विस है अमृतसर के लिए। मैं 2-3 दिन में उनकी अंतिम रस्में पूरी करके आऊँगी। उनके सब भाई बहन भी यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, अमृतसर पहुँचकर फ़ोन कर लेना, मैं आपको हवाई अड्डे पर मिल जाऊँगा। ठीक है बाबूजी। ते फ़ोन बंद कर दिता। संतोष आपटे 10 दिन पूरे करके अमृतसर आई, इंदू के सारे रिश्तेदारों को वापस भेज के। अर्शप्रीत हवाई अड्डे तो संतोष आपटे को घर लेके आया। इन्हां दिनों में सरदार जी को कोई सूचना नहीं दी गई। डर सी कि मौत की खबर सुन के तबीयत न बिगड़ जाए। वैसे इन्हां दिनों दौरान सरदार जी की सेहत सुधर गई सी, पर तुर फिर नहीं सी सकती। संतोष आपटे नूं मिलण तो पहले अर्शप्रीत ने डैडी नूं पुछया, तुहाडी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? सीने विच कोई दर्द या साह लैण विच कोई समस्या तो नहीं? सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। डैडी जी, बेंगलोर विच तुहाडे जान पछाण दी कोई इस्त्री रहिंदी है? नहीं, कोई नहीं, सरदार जी ने उत्तर दिता। एक औरत तुहानूं मिलण आई है। मैनू मिलन आई है? हाँ जी। कौन है? आपे पूछ लो। ते अर्श ने संतोष आपटे नूं अंदर बुलाया। अंदर आके संतोष आपटे ने बड़े सत्कार नाल सरदार जी के पैरों नूं हथ ला के मत्थे ते लगाए। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हाँ बोलिए, कौन है आप? मैं साहिब जी डॉक्टर इंदु मैडम के साथ पिछले 30 साल से उनके साथ रहती हूँ। इंदु मैडम के साथ? हाँ जी। कहाँ रहती हैं वो? बेंगलोर में रहती थी। अब नहीं रहती? नहीं, उनका देहांत हो गया है। कब? संतोष दे सबर का बंध टुट गया, पुब्बा मार के रो पई।
बाबूजी वो नहीं रहे। क्या? जिवें सरदार जी ते बिजली डिग गई होवे। कब? कैसे? हार्ट अटैक हो गया आज से 12 दिन पहले। उस वक्त ये फोन नंबर नहीं था आपके पास? मैं बहुत व्याकुल हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आपको फोन किए, आपने फोन नहीं उठाया। उस दिन भी शाम को फोन किया, दूसरे दिन किया तो फोन बंद था। हमारा फोन नंबर कभी बंद नहीं होता, पर हमारा नंबर आपको कैसे मिला? फेसबुक पर आपका मोबाइल नंबर है, वहीं से देखकर फोन किया, संतोष आपटे ने दस्या। डैडी जी, उसे दिन ही ਤੁਹਾਨੂੰ भी तकलीफ हुई सी, ਤੁਹਾਡਾ फोन घर ही ਪਿਆ ਰਿਹਾ। नाले होश किस ਨੂੰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ। ਇਹੋ कुछ मेरे अंदर टूट गया सी। बाबूजी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं सवेरे उनके लिए चाय लेकर गई, उसी समय उन्होंने प्राण त्याग दिए। केवल मेरे हाथ को दबाया, आंखें बंद थीं और फिर धीरे धीरे उनके हाथ की जकड़ खत्म हो गई। हाथ ठंडा होना शुरू हो गया। मेरे हाथों से रेत की तरह उनका जीवन फिसल गया। सबसे पहले मैंने आपको फ़ोन लगाया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनके भाई से बात हुई। उनकी अपनी क्लिनिक थी, उसी घर में सब स्टाफ इकट्ठा हो गया। डॉक्टर को बुलाया, पर मायूस होकर डॉक्टर चला गया। मेरे लिए तो संकट का समय था। फिर दूसरे दिन भी आपको फ़ोन लगाया, फ़ोन बंद था। सरदार जी फर्श ते नज़रां लाए बैठे सन, चुपचाप। उन्हां दियां अखां बंद सन, कोई हरकत नहीं सन कर रहे। ते फिर सोफे ते डिग पे। आनंदी ने अर्शप्रीत नूं उच्ची आवाज़ मारी। आके जोर नाल हिलाउणिया उत्तेजता नाल आवाज़ां मारियां, डैडी जी करके खूब हिलाया। सरदार जी दियां अखां खुलियां, आसे पासे नज़र मारी, सब नूं वेखिया ते बोले, अमन नूं बुलाओ। उन्हां दा गला भारी होया सी। अमन नूं जल्दी बुलाया ते अपनी गलवकड़ी विच लैके रो पे, जिवें किसी अपने दी मौत अपने सब तो प्यारे शख्स के गले लग के बंदा रो पैंदा है। पुब्बा निकल जांदियां ने। काफ़ी देर तक उसनूं गले लगाई रखिया। छोटे बच्चे नूं की समझ सी कि की होया। ਉਹ ਦਾਦੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ अथरू ਪੂੰਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ चुप ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, दादू क्या बात हो गई है? आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटे, आप समझ नहीं सकते हो। आनंदी ने पानी लिया के पिलाया। कुछ नहीं बोली, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सरदार जी वल वेखदी रही। वो जानती सी कि सरदार जी आत्मा तो इंदू नाल प्यार करते सन। सारी उम्र इन्हां ने उसका जिक्र नहीं किया, कदी प्यार नूं ज़ाहिर नहीं किया। किहो जिहा रूहानी प्यार। उधरों इंदू नूं दिल का दौरा पिया ते उसे वेले इन्हां नूं भी दिल का दौरा पिया। ये तो बड़ी किस्मत सी कि ये बच गए, पर वो विचारी पूरी हो गई। उसके प्यार की अथाह डूंघियाई नूं सोच के आनंदी दियां अखां भी सज्जल हो गईयां। हंझू निकल आए ते सरदार जी की पिठ नूं थपथपाया ते हौसला दिंदियां कहा, सरदार जी जो होना सी हो गया, हिम्मत ना छड्डो। अर्श भी बहुत परेशान सी कि जिस इस्त्री का नां कदी डैडी के मूँह तो नहीं सुनिया, उस नाल इन्ना प्यार करते सन ते वो भी इन्ना प्यार करती सी। कॉलेज की पढ़ाई तो बाद कदी मिले भी नहीं। ये किहो जिहा प्यार आ? रूहां दा मेल सी, केवल एक दूजे नाल बीतदी दा केवल एहसास सी। इहो जिहियां गल्लां सोचते रहे। घर का वातावरण इहो जिहा हो गया जिवें कोई परिवार का मैंबर ही चलाना कर गया होवे। किसी ने शाम तक रोटी नहीं खाधी ते सारा दिन सोग मनाया। सरदार जी ने सारा दिन किसी नाल कोई गल नहीं की। रात नूं सौण तक चुप रहे, अखां बंद रहियां ते इंज जापदा सी जिवें समाधि विच लीन हो गए होण
ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਨੰਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ संतोष आपटे ने पूछा, आप कब से मैडम के साथ हो? बाबूजी 30 साल हो गए हैं। आपका अपना परिवार है क्या? हाँ, मेरे भाई बहन हैं, पति नहीं है, उसकी डेथ हो गई थी। फिर मैं मैडम के साथ ही रही हूँ। मैडम जानी मानी डॉक्टर थी, पहले सरकारी हॉस्पिटल में थी, रिटायरमेंट के बाद अपने ही घर में 10 बेड का औरतों के लिए अस्पताल बना लिया। घर काफ़ी बड़ा है, हम भी उसी घर में रहते हैं। संतोष ने 2 लिफाफे सरदार जी ने दिते। यह साहब जी आपके लिए हैं। एक में उनके घर के दस्तावेज हैं, आपको घर और हॉस्पिटल गिफ्ट किया है, और दूसरे लिफाफे में आपके लिए एक पत्थर है जो 6 महीने पहले उन्होंने लिख कर रखा था और मुझसे कह रखा था मेरे मरने के बाद सरदार साहब को पहुंचा देना। वो सारी उम्र करती क्या रही है? सिर्फ आपको याद करती रही है। कोई समय ऐसा नहीं था जब आपके सिवा उन्होंने कुछ और सोचा हो। हमारे बारे में उन्हें कुछ पता था? हाँ, जो आप फेसबुक पर डालते थे वो सब देखती थी। आपके परिवार की तस्वीरें, आपकी तस्वीर और आपके छोटे बाबू की तस्वीर तो उन्होंने फ्रेम करवाकर अपने टेबल पर रखी हुई थी। कितनी कितनी देर इन तस्वीरों को निहारती रहती थी। बाबू से बहुत प्यार करती थी। हाँ, बाबू से तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जान है। ऐसे ही वो भी उनकी तस्वीर हाथ पे लेकर कल्पना में खो जाती थी। फेसबुक पर आपका मोबाइल नंबर भी है, उस पर ही आपसे संपर्क करने की बात करती। मैंने फेसबुक पर उसे बहुत खोजा पर कोई पता नहीं चला। उसके नाम की बहुत औरतें फेसबुक पर हैं पर वो नहीं दिखी। सरदार जी ने दसिया, मेरे नाम से उनका फेसबुक नंबर है। हाँ, इसीलिए आपको अपने बारे वो कुछ बताना नहीं चाहती थी ताकि आपके परिवार में कोई गड़बड़ी न हो उनके कारण। पर बाबूजी, मैंने उन जैसी कोई औरत नहीं देखी है। कैसे? सारा जीवन आपके लिए बिता दिया, आपके लिए अपने परिवार को ठुकरा दिया, शादी नहीं की, कोई मर्द उनको अच्छा नहीं लगा, आपके बराबर किसी को उन्होंने समझा ही नहीं। वो फरिश्ता होकर मीरा बनी रही। आज के युग में ऐसी स्त्री होना देवी के समान है। वो मेरे लिए साक्षात देवी थी। हाँ संतोष बेटे, वो देवी ही थी। उसने अपना वचन पूरा किया, अपना प्रण निभाया और सारी उम्र एक ही पुरुष को अपना आराध्य माना। ऐसे कोई और नहीं कर सकता। मेरी आत्मा से भी वो कभी बाहर नहीं निकली। पिछले 50 वर्षों में कोई ऐसी सुबह नहीं हुई जब ईश्वर से पहले मैंने उसे याद न किया हो। कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जब सोने से पहले उसकी कल्पना न की हो। अपने भीतर ही उसकी याद को समेटे रखा। वो मेरी रूह में बसती रही है। आज लग रहा है वो बस्ती उजड़ गई है। मेरी कल्पना का अंत हो गया है। मैं उसके बंधन से मुक्त हो गया हूँ, पर उस बस्ती के खंडर मेरी आत्मा को शूल बनकर चुभते रहेंगे सारी उम्र। कैसी विडंबना है कि जिस बच्चे को मैं आत्मा से प्यार करता हूँ, वही बच्चा उसकी आत्मा में भी बस गया। बिना देखे, बिना उससे मिले। ये कैसा आत्मा का मिलन था। जिस दिन उसका देहांत हुआ, उस दिन
मेरा भी देहांत हो जाना था। ये तो मेरे परिवार की दृढ़ शक्ति थी, प्यार था कि मैं बच गया। नहीं तो जिस दिन उसका अंत हुआ उसी दिन मेरा भी अंत होना था। ते सरदार जी दियां अखां नम हो गईयां, भावुक हो गए। आनंदी ने हौसला दिता। अर्श ने डैडी नूं घुੱਟ लिया। डैडी जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਡੈਡੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ रूहां ਦਾ मेल कहते हैं पुत्र। पर संतोष, ये जो आप मकान के जायदाद की कागज लाई हो, इसका हमने क्या करना है? ये तो आप जाने बाबूजी। जो मुझसे कहा था मैंने कर दिया, आगे आपने सोचना है। यह बड़ा धर्म संकट है संतोष जी, सरदार जी बोले। इस बारे सोचते हैं डैडी जी, अर्श ने किया। ठीक है बेटे, संतोष के रहने का ख्याल रखिया जे। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। ये ते राजदूत हैं। ठीक है अर्श, तुसी लोग नहा तो लवो। ते उन्हां ने दूजा लिफाफा खोलिया जिस विच खत सी, इंदू दे हत्थां दा लिखिया होया, जिस विच लिखिया सी, गुरसेवक, ये पत्र आपको तब मिलेगा जब मैं अपने हिस्से के सांस भोग चुकी होंगी, मेरी चिता ठंडी हो चुकी होगी और मेरी आत्मा अनंत में समा चुकी होगी। मुझे आशा नहीं है कि तुम मेरे तन को अंतिम बार छू सकोगे, जिस स्पर्श के लिए मैं जीवन भर तरसती रही। प्रभु ने कैसा जीवन दिया था कि मैं एक काल्पनिक शरीर को ही अपना प्रभु समझती रही। तुम मेरे पास रहते तो दुनिया की ढेर सारी खुशियों की आशा करती, ढेर सारे सपनों को फलीभूत होते देखती। खुशियों का आकाश मेरी झोली में होता और मैं फूली न समाती। तुम्हारे बिना दर्द ही झेलती रही, मन का दर्द, तन का दर्द और अपने वजूद का दर्द। शायद ये दर्द ही मेरी तकदीर थी और तुम मेरे इस दर्द से बेखबर रहे। मेरे जीवन की ये पीड़ा रही है कि मेरी चाहत कभी पूरी नहीं हुई और इसी चाहत को लेकर मैं मर जाऊंगी। गुरसेवक, तुम्हारी परछाई मेरे साथ चलती रही है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने साथ पाया है, खाते पीते सोते और जागते। दुख इस बात का है मैं बांझ रही हूँ, माँ नहीं बन सकी। स्त्री जननी है, मनुष्यता इसी के बलबूते चलती है, पर मैं ये कर्तव्य नहीं निभा सकी। कई बार भटकने का मन किया, बिखर जाने का मन किया, पर तुम्हारी चाहत ने मेरी रूह को कभी भटकने नहीं दिया। तुम्हारी सोच ही मेरी रक्षक बनी रही। मैं बंधी रही उस बंधन से जिसमें मुझे तुमने कभी बांधा ही नहीं, कभी मुझे अपने आगोश में लिया ही नहीं, अपनी बाहों में समेटा ही नहीं। तुम्हारे कदमों में ही स्थान मिला होता तो मैं धन्य हो जाती। मैं सारी उम्र अपनी वफा में तुम्हारी वफा तलाशती रही। काश मैं तुम्हारे पहलू में रहती, तुम्हारा दुख सुख बांटती, पर यह शायद मेरी तकदीर में नहीं था। तुम्हारी आंखें कभी नम होती तो वो आंसू अपने दामन से पोंछती। तुम्हारी मुस्कुराहट में मैं जीवन जी लेती। जी तो अभी भी रही हूँ, तुम्हारी सोच के सहारे, तुम्हारी कल्पना के सहारे। भीतर तो कहने को बहुत कुछ है, पर किससे कहूँ? कौन मेरी वेदना को समझ सकता है? जीवन के सफर में इतना आगे निकल चुकी हूँ कि वापस लौट नहीं सकती। तुम्हारे प्रेम ने कभी लौटने ही नहीं दिया और आगे कोई मंजिल भी नहीं दिखी। अभी मेरी रूह जीवंत है,
मैं उसका मातम नहीं मना सकती, क्योंकि उस रूह में तुम बसते हो और मेरी मौत के बाद ही तुम्हारे लिए मेरी चाहत मरेगी। मैं अपनी दहलीज पर खड़ी तुम्हारे कदमों की आहट का इंतजार करती रहती हूँ। कई बार आहट सुनी है, तुम्हारे होठों का स्पर्श मैं भूल नहीं सकी हूँ। अभी मेरे होठों पर वो आभास मौजूद है, तुम्हारी सांसों की खुशबू अभी ताज़ा है मेरी सांसों में। कई बार लगा तुम मेरी ओर बढ़ रहे हो, अगले पल मुझे छुओगे, पर मेरी कल्पना की सोच बिखर जाती है, मेरा भरम टूट जाता है। अपने आप को समझाती हूँ कि सपने कहाँ सच होते हैं। मैं खुले आकाश में तुम्हें खोजती रहती हूँ, बादलों में ढूंढती हूँ। कितनी पागल हूँ, आकाश में तो केवल आत्मा घूमती है। अपने आप को कोसती हूँ इस बुरे ख्याल के लिए कि आत्मा तो मरने के बाद फैल जाती है आकाश में। तुम तो मेरी आत्मा के भीतर हो, तुम कैसे आकाश में हो सकते हो? फिर तुम्हारी लंबी आयु की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हर पूर्णिमा की रात जब वायुमंडल शांत और शीतल होता है, मेरे भीतर अग्नि की ज्वाला धधक जाती है। मन में पश्चाताप की लपटें फैल जाती हैं, तन भस्म होने लगता है और पानी के नल के नीचे घंटों बैठी रहती हूँ उन शोलों को शांत करने के लिए। इन सब के लिए मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। इसमें कोई दोषी नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये मेरी अपनी चुनी हुई जिंदगी है और मुझे कोई गिला भी नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारे कदमों की आहट सुनने के लिए बेकरार हूँ और यह बेकरारी मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। मेरे पास आपके परिवार की तस्वीर है। तुम अपने पोते से बहुत प्यार करते हो, मुझे भी उससे बहुत प्यार हो गया है, बिल्कुल आप जैसा है। आपके साथ ही मेरी रूह में वो बस गया है। आप दोनों को देखकर मेरी आत्मा आनंदित हो जाती है और प्रसन्नता से भर जाती हूँ। मैंने सदा तुम्हारे परिवार की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना की है। आप लोग सब सुखी रहे। संतोष ने मेरी बहुत सेवा की है, आपकी भी सेवा करेगी, इसका ख्याल रखना। मुझे पूरी आशा है कि अगले जन्म में फिर से इस अधे अधूरे रिश्ते को पूरा करने के लिए जन्म लूंगी और सारा जन्म आपके आगोश में रहूंगी। आपकी इंदु। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਵਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਿਸ਼ਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਵਲਸ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨੋਵਲ ਸੁਣ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।